Hello children, today we are going to start with chapter 4, atmosphere, right? So in this chapter we'll study about atmosphere, envelope of air that surround the earth is called atmosphere. So Tanya was watching the weather report on television. वो क्या कर रही थी? Weather report watch कर रही थी television पे. The news reader was talking about the temperature and rainfall of different Indian state. What role does air play in deciding weather condition of a place? Tanya wondered. So in this chapter, we will study about composition of atmosphere, structure, उसकी importance, weather और climate क्या होता है, उसका difference बताऊंगी, temperature of atmosphere क्या है, air pressure, wind and moisture. So our world is surrounded by blanket of air. So our world is surrounded by a blanket of air, which we call what? Atmosphere. Earth would not have been able to sustain life if it was devoid of this blanket air. There are many gases present in the air. These gases together makes the atmosphere. ये जो gases है, ये सारी मिलके क्या बनाती है? Atmosphere बनाती है हमारा. Right? We all depend upon atmosphere. What it gives us? ये हमें क्या देती है? Oxygen that we breathe, but also protect us from harmful radiation of the sun. और हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? Harmful radiation of the sun. जितनी भी हार्मफुल रेडिएशन जो हमें सन से वैसे यूवी रेस वगैरह इससे प्रोटेक्ट करती है. एंड इमेजिन दैट व्हाट वुड हैपन टू ऑल द लिविंग बीइंग्स विदाउट द प्रोटेक्टिंग कवरिंग. So let's study about the composition. We have nitrogen, oxygen, argon and other gases. So let's see here. 78% is nitrogen, 21% is oxygen. And we have 0.03 carbon dioxide, 0.93 argon and 0.0 other gases. So that atmosphere is made up of mixture of gases. किसका बना हुआ है mixture of gases का? The earth atmosphere is made up of mixture of gases. Nitrogen, oxygen, these are the two most important gases. These are the most important gases है that we found in our atmosphere. Nitrogen makes 78% और ऑक्सीजन कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है 21%. एंड वी हैव अदर गैसेस जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टन, नियॉन ये सब इंक्लूडेड. राइट. डेंसिटी ऑफ दिस मिक्सचर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपन, ये कम हो जाता है जैसे ही हम एल्टीट्यूड इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो आपकी मतलब जो डेंसिटी है मिक्सचर की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस विच इज डायरेक्टली यूटिलाइज बाय ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल टू ब्रीथ. ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है. व्हाट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस जो डायरेक्टली इसको कौन यूटिलाइज करता है? ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल. Green plants gives out oxygen while making their food by the process of photosynthesis. Deforestation means cutting of trees. ये क्या करता है? Balance of oxygen को disturb करता है, right? Plants and trees are also therefore important as they produce oxygen. चाहे plants हो चाहे trees हो, दोनों क्या है? Important है. Why? Because what they produce? Oxygen, right? Now nitrogen is another important gas and it is used by plants for their growth, but they cannot use it directly. So they make the help of bacteria which are present in the soil to convert this nitrogen into usable form. So this usable form is compound form of nitrogen as nitrates which are absorbed. So nitrates होता है वो क्या होता है? Absorb हो जाता है. Now carbon dioxide is also very important gas as plants use as raw material to make their food and release oxygen in the process. और ये क्या release करते हैं? Oxygen release करते हैं. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय बोथ. देखो ह्यूमन बीइंग एनिमल्स दोनों रिलीज करते हैं और हम क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करता है? कौन कंज्यूम करता है? हमारे प्लांट्स. एज द बैलेंस ऑफ गैसेस इज मेंटेन. इसी तरीके से क्या होता है? जो बैलेंस है वो क्या होता है? मेंटेन होता है. यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द. देखो जो भी सोलर रेडिएशन आ रही है हमारे अर्थ में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है. ठीक है, कुछ इन्फ्रारेड रेडिएशन जो होती है वो वापस चली जाती है आपके. ठीक है, एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड अकर नेचुरली और जो ग्रीन हाउस गैसेज है और सच एज CO2 आर प्रोड्यूस और सम इन्फ्रारेड जो होती है एब्जॉर्ब. कुछ तो क्या होती है? वापस से जाती है और कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है. ठीक है, इसका बहुत बड़ा प्रोसीजर है. व्हेन यू विल कम इन द बिगर क्लासेस एंड यू विल स्टडी अबाउट इट. सो बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड ट्रीज एंड इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ सम फॉसिल फ्यूल क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. दे नॉट ओनली ऐड टू पोल्यूशन. ऐसा नहीं है कि खाली पोल्यूशन ही ऐड कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये आपके नेचुरल बैलेंस जो है गैसेस का एटमॉस्फेयर में उसके ऊपर डिस्टर्ब कर रहे हैं. व्हेन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर, जैसे ही क्या होगा?
जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का वो इंक्रीज करेगा, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑल्सो इंक्रीजेस। जो टेम्परेचर होगा अर्थ सरफेस का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड अ ग्रीन हाउस गैस दैट ट्रैप सनरेज एंड डज नॉट लेट टू एस्केप। इस फिनोमिना को क्या कहता है, ग्लोबल वार्मिंग। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 कंक्रीट लेयर, राइट? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। जो हाइट है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू इट्स लैटिट्यूड, राइट? सो ईच लेयर हैज जोन ऑफ मार्क चेंजेस। So let's see here, we have troposphere, right? Then we have stratosphere, mesosphere जहाँ पे आपको meteors देखने को मिलेंगे, thermosphere and your exosphere, right? So these are the different layers. So let's study them one by one. First of all, I will tell you about the troposphere. So we are going to start with the first layer, that is troposphere. So it is the most important layer of the atmosphere. The air we breathe exists in this layer. It also contains dust particle, smoke, soot and ash as well as. So 99% of gas atmosphere में वो concentrated होती है and it extends up to 12 किलोमीटर. आपका 0 से 12 किलोमीटर वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, राइट? एंड इट एक्सटेंड अप टू 12 किलोमीटर एट द इक्वेटर because air is hottest, so it expands. Water vapor and dust particle are present in this layer, and weather phenomena जैसे rainfall हो गया, fog हो गया, and your hailstorm occur in this layer. क्या क्या occur करता है? Rainfall, fog and hailstorm. Next is stratosphere above the troposphere and it extend up to 50 किलोमीटर, ठीक है? कहाँ तक है ये आपका? 12 to 15 kilometer, right? So the temperature remain constant at the height of 20 kilometer, and the upper limit has ki, the upper limit of this layer is called stratopause. This layer is important as it contain ozone gas जो प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। और ये जो लेयर है ये फ्री है क्लाउड से और रिलेटेड वेदर कंडीशन, एंड इट इज आइडल फॉर एविएशन। यहाँ पे एविएशन के लिए बहुत जानी जाती है, राइट? यहाँ पे एयरलाइंस वगैरह। Then we have mesosphere. It extend to the height of 80 किलोमीटर। ये कहाँ लाई करता है? जस्ट अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ये कोल्डेस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की, जिसकी अपर लिमिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? मेसोपोज। मेसोस्फेयर की अपर लिमिट को क्या कहता है? मेसोपोज। मेसोस्फेयर हैज क्लाउड, मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है? क्लाउड्स होते हैं जो शाइन करते हैं इन द नाइट एंड दे आर मेड अप ऑफ कॉस्मिक डस्ट। Meteoroids burn in this layer when they enter the atmosphere. Most of the meteoroids from the space turn into dust before reaching the Earth's surface. Then we have thermosphere. So it lies off the mesosphere and extends from 80 to 700 kilometers. Its lower part has electrical charged particles. इसका जो lower part है वहाँ पे electrically charged particles होते हैं जिनको हम ions कहते हैं. Therefore, this layer is called ionosphere. Radio waves which are transmitted from the Earth. जो भी रेडियो वेव्स अर्थ से ट्रांसमिट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है इस लेयर से, और ये क्या फैसिलिटेट करता है? लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये मीटियोर शावर से प्रोटेक्ट करती है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, एंड दिस लेयर राइजेस वेरी क्विकली, और जो हाइट है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज एक्सोस्फेयर। जो अपर मोस्ट लेयर होता है उसको हम एक्सोस्फेयर कहते हैं, राइट? एंड इट लाइज जस्ट अबव द आइनोस्फेयर. It extend almost up to 10,000 किलोमीटर. Gravitational pull is the minimum in this layer. Light gases जैसे आपकी हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, वो फ्लोट करती है and escape into the space from this layer. Then we have importance of atmosphere. कि important है both for the plants and animal as it slides sustaining gases like oxygen and carbon dioxide. Weather phenomena होता है वो इसी layer में होता है due to dust particles and water vapor present in this atmosphere. It also control temperature of the earth. The ozone layer is the atmosphere जो protect करती है किससे? harmful ultraviolet radiation से. Sound waves travel through the atmosphere, और जो sound wave है वो क्या करता है? travel करता है इससे. Now weather and climate. So weather refers to condition एक given place of time की for the short period of time, वो change करती है day to day. जैसे अभी मॉर्निंग में थोड़ा विंडी होगा, थोड़ी आफ्टरनून बाद थोड़ी हॉट हो जाएगा, फिर रेनी हो जाएगा, तो ये कहते हैं वेदर फिनोमिना होते हैं. सो द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस जब लॉन्गर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या रहता है? सेम रहता है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. न्यू चैनल शोज द वेदर रिपोर्ट, दे शेयर व्हाट वेदर फोरकास्ट, और वो एस्टिमेट भी करते हैं एटमॉस्फेरिक रेन टेम्परेचर को, रेंज को फॉर द डे. नाउ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट.
ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस दिया। वेदर डे टू डे कंडीशन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बताता है, ये आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंडीशन बताता है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, precipitation, रेनफॉल। और एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट क्या है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, precipitation, रेनफॉल, बट ये लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के लिए होते हैं। स्मॉल वेरिएशन इज सीन एंड हेयर स्मॉल वेरिएशन आर देयर इन द एलिमेंट्स फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये क्लाइमेट को इफेक्ट नहीं करते। वेदर कंडीशन ऑल्सो टेक प्लेस चेंज इन विद सीजन एंड क्लाइमेट ऑफ द रीजन चेंजेस विद सीजन। जो क्लाइमेट है वो सीजन के साथ चेंज करता है, और वेदर कंडीशन जो होती है, वेदर कंडीशन होती है, वो सीजन में चेंजेस कर सकती है। टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। बाय द टेम्परेचर ऑफ प्लेस वी मीन दैट टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग एट दैट प्लेस। टेम्परेचर इज एन एवर चेंजिंग फैक्टर ऑफ वेदर। टेम्परेचर क्या है? एवर चेंजिंग फैक्टर है, एंड इट नॉट ओनली चेंज ऑन द डे टू डे बेसिस, बट सीजन टू one season to another season also. We use thermometer to measure the temperature, barometer to measure atmospheric pressure. रेन गॉज किसके लिए हम यूज करते हैं? अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेजर करने के लिए। और विंड वेन किसको? डायरेक्शन ऑफ विंड को शो करने के लिए। नाउ आइसोलेशन इज एन important factor that influence the distribution of temperature. It is the incoming solar radiation interrupted by the earth in given period of time. दो इंटेंसिटी है आइसोलेशन की, वो चेंज करती है विद डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। द टेम्परेचर डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल, एंड दिस इज द रीजन व्हाई पोल्स रिमेन कवर्ड विद स्नो। यही रीजन है जो पोल है वो स्नो कवर्ड होता है। Cities experiences higher temperature than village due to use of asphalt roads and concrete metal building. They get heated easily during the day, and what they release heat at night, और night में heat को release करते हो। Now air pressure means atmospheric pressure. देखो क्या होता है, जो आपकी एयर है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करती है, राइट। सो जो आपकी मॉइस्ट एयर है वो राइज करती है और कूल डाउन करती है, राइट। सो डू यू नो दैट द एयर अराउंड अस एक्सर्ट ग्रेट प्रेशर। जो एयर हमारे आसपास है वो क्या एक्सर्ट करती है? ग्रेट प्रेशर। बट वी डोंट फील इट बिकॉज आवर बॉडी आल्सो एक्सर्ट इक्वल प्रेशर। दिस एक्सिट्स एन इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट दीस टू प्रेशर। बट अगर आप उसको इन्फ्लेट कर देते हो बैलून को और टायर ऑफ साइकिल को, द एयर इनसाइड देम एक्सर्ट प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ। जो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है व्हाट बाय द वेट ऑफ एयर ऑन दैट सर्फेस, उसको क्या कहते हैं? एयर प्रेशर। This pressure reduces rapidly as we go up in this layer. The pressure is maximum at the sea level. The pressure of the place is influenced by the temperature of that place. Similarly, जिन प्लेसेस पे टेम्परेचर लोअर होता है, लो होता है, जो एयर होती है वो कैसे रहती है? ठंडी रहती है, एंड देयरफॉर हैवी होती है, और एयर सिंक करती है और क्या क्रिएट करती है? हाई प्रेशर। Then we have winds. What are winds? These are the movement of air from high pressure area to lower pressure area. Wind is not visible to us, but we can see its effect when we see dry leaves blowing on it. Right? So the direction in which smoke rises up in the sky also helps us to see in which direction the wind is blowing. So wind are of three types: permanent, seasonal, and local wind. What are permanent wind? Permanent winds are the winds that blow continuously in a specific direction throughout the year. The trade winds, westerly और polar easterly, ये कुछ परमानेंट विंड्स है, आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? ट्रेड विंड हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, और पोलर विंड हो गई। सीजनल विंड ये चेंज करती है सीजन के साथ, जैसे मानसून विंड हो गई और विंटर विंड्स हो गई। नेक्स्ट इज लोकल विंड्स। दिस टाइप्स ऑफ विंड्स ब्लो ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ डे or during a specific period of year. The land and the sea breeze blue is also an example of such type of wind. Now moisture. Water become water vapor when it evaporates from that surface and various water bodies. This moisture present in the air is called humidity. और when the humidity is high, जो moisture content होता है एयर का वो कैसा होता है? More than the norm. We feel hot or sweat does not evaporate. Such a day is called humid day. As the air gets hot during the day, it can hold large amount of water. ये क्या होल्ड करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड करता है। सिंस द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एयर इंक्रीजेस, इट टेक्स लॉन्गर फॉर द क्लोथ्स टू। आपने देखा होगा इवोपरेशन जो होता है, रेट ऑफ इवोपरेशन स्लो हो जाता है, और जो हम कपड़े सुखाते हैं बाहर वो जल्दी से सूखते नहीं है। As the water vapor rises up in the atmosphere, it cools down, which leads to formation of water droplet. Clouds क्या होते हैं? Huge masses of such droplet. When these clouds become too heavy,
जब ये क्लाउड्स ज्यादा हैवी हो जाते हैं, ये ज्यादा पानी होल्ड नहीं कर पाते हैं, दे पोर डाउन अर्थ सरफेस एज precipitation. Rain is very important for all living beings including plants. ये एक important source of fresh water है for the plants and the animals, especially in the dry season. Shortage of rainfall led to drought or scarcity of water. We should save water. Excessive rainfall is harmful as it leads to flood, and there are 3 types of rainfall. कौन-कौन से होते हैं? Orographic, convectional और cyclonic. Right? These are the different types of rainfall. So this is the theme corner given. You can answer them. Now our chapter has been completed. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.